लोड के चले जाना है. So Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So today we are going to study the one of the topic of genetics. Today it will be your first step or the first approach towards the genetics. So I will be telling you a little about genetics first, then we will move towards our topic, that is cancer. Genetics is the major portion of your second year biochemistry. There will be three SEQs, remember, from genetics. Three SEQs of 6 marks and about 10 to 12 MCQ. So this comprises of your major portion, and this is being taught at the end of the lectures or at the end of the year session. So this is very important, and there will be not class test of your genetics. एंड क्लास टेस्ट ना होने की वजह से इसमें लोगों को मुश्किल थोड़ी आती है. सो रिमेंबर जेनेटिक्स इज द मेजर पोर्शन. किसी भी चैप्टर से या यूनिट से 3 एससीक्यूज नहीं है आपके प्रॉफ के अंदर. दैट इज द जेनेटिक्स, and it is very interesting. The central dogma, starting from the gene, the transcription, the translation, the defects of the transcription, the defects of the translation, and the regulation of these transcription and translation, and associated disorders, and the different techniques to quantify them, and a lot of associated clinicals. You will study this. Genetics is a separate world of the biochemistry. Seeing this, in 2019, the biochemistry department of King Edward Medical University replaced the name with the Department of Biochemistry and Molecular Genetics. You can see from the अगर आप कोई पेज देखें, कोई लेटर देखें बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट का, तो उसके ऊपर टॉप पे लिखा होता है द डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स. So this is very important. The molecular genetics is a separate field, and you can see there is a separate PhD programs in this genetics. So this is a very interesting topic, as it is purely related to the human body, that how the human body develops, what are the genes, and what will happen if there is certain pathologies in these genes. If these genes are defective, what will happen? So starting our lecture with the very first question from all of you, can anybody from you tell me what is meant by cancer? What do you mean by cancer? अगर किसी को कुछ समझ आती है कि कैंसर क्या है, kindly unmute his or her mic and tell us about the cancer. You have seen a lot of patient, and आप रिलेटिव में सुनते होंगे उसको कैंसर हो गया, उसको कैंसर हो गया, इसको कैंसर हो गया. So what is cancer? You have studied this cancer, the term cancer, in your first year physiology, probably the third chapter, in which you have studied this, the term the cancer. So no input from your side. The cancer basically means uncontrolled, uninhibited, uninterrupted, rapid proliferative growth of cells. In the cancer, the cells become rapidly proliferating. They divide again and again and again and multiple times without any inhibitory signals. They bypass those inhibitory signals and they continue their survival by certain mechanisms. कैंसर सेल्स जो होते हैं वो रैपिडली डिवाइडिंग होते हैं. नॉर्मल बॉडी के अंदर सेल्स जो होते हैं वो एक नॉर्मल ग्रोथ के बाद इनहिबिट हो जाते हैं. वो कैसे इनहिबिट हो जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा. अब जब कैंसर को डेवलप होना होता है तो वो इस इनहिबिटरी सिग्नल्स को बाईपास करता है. वो इस इनहिबिटरी सिग्नल्स को कैसे बाईपास करता है, व्हाट इज द बायोकेमिकल basis, I will be telling you. So the cancer is the rapid, uninhibited, unregulated proliferative growth of the cells in which the cells divide and multiply rapidly again and again and again and result in the spread of the cancer or the development of a mass. So this is the cancer, and the field which study this cancer is called as oncology. Onco means cancer, the growth of the cells. So today we are going to study the molecular biology or the molecular biochemistry of the cancer. So you will be doing this from the chapter number 18 of the Marx biochemistry. मैं
स्लाइड्स बनाने लगा था, लेकिन मैंने फिर सोचा कि यहाँ पे अच्छा लिखा हुआ है तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ स्लाइड्स. So the term that is the unproliferative growth of the cells, and it is the malignant growth. So you can see from this diagram, these are the normal cells. These are the normal cells. If there is mutation in certain genes, we will discussing, they start proliferating. You can see this blue dot cell. This is a cancerous cells. They start proliferating again and again and again, and they result in the development of a cancerous cell. That is the rapid proliferative, uninhibited, unregulated growth of cells. These cells then invade the surrounding structures. This invade the surrounding structures, for example, the blood vessels, and they metastasis to different organs. क्या होता है? कैंसर सेल्स जो होते हैं वो रैपिडली डिवाइड करते हैं, ग्रो करते करते अपने ओरिजिन को लीव करते हैं, ब्लड वेसल्स में, लिम्फेटिक्स में या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में जाते हैं, फिर पूरी बॉडी में जाके स्प्रेड कर जाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस. सो यहाँ पे मैं आपको कुछ जीन्स के बारे में बता दूं. सो सबसे पहले, that are the proto-oncogenes. The name is proto-oncogenes. Those genes which normally regulate the growth of the body. ऐसे जीन्स जो नॉर्मल बॉडी की प्रोटीन सेंसेस, बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोटो-ऑन्कोजीन्स. दीज आर कॉल्ड एज proto-oncogenes. Those genes which normally regulates the growth of the body, the senses of protein, that is called as proto-oncogenes. अब बात सुने, अब अगर proto-oncogenes के अंदर कोई ऐसी म्यूटेशन आ जाए कि ये सेल्स की ग्रोथ कराता रहे कराता रहे कराता रहे कराता रहे, आई रिपीट अगेन, अगर प्रोटो-ऑन्कोजीन के अंदर कोई ऐसी म्यूटेशन आ जाए ये सेल की ग्रोथ कराता रहे कराता रहे कराता रहे, इसको कहते हैं ऑन्कोजीन्स. This means that these proto-oncogenes are now converted into oncogenes. So proto-oncogene is the precursor of oncogene if there is certain mutation that causes gain of function. अगर प्रोटो-ऑन्कोजीन का फंक्शन ज्यादा से ज्यादा गेन हो जाएगा, उसके अंदर कोई ऐसी एक्टिवेटिंग म्यूटेशन आएगी जो इसके फंक्शन को बढ़ाती से बढ़ाती जाएगी, तो प्रोटो-ऑन्कोजीन जिसमें कन्वर्ट होगा हम उसको कहेंगे ऑन्कोजीन्स. अब होता इस तरह नहीं है. अल्लाह ताला का निज़ाम बहुत स्ट्रॉन्ग है, अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह ताला ने इस जीन्स के ग्रोथ को या इस जीन से आने वाले जो प्रोडक्ट्स होंगे उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए बॉडी के अंदर कुछ और जीन्स भी रखे होते हैं जिनको हम कहते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स. सो आई रिपीट अगेन, इन प्रोटो ऑन्कोजीन जब ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट होते हैं, इनकी ग्रोथ को रोकने के लिए बॉडी के अंदर कुछ और जीन्स भी होते हैं, दैट इज ट्यूमर सप्रेसर जीन्स. These genes, in the product of these genes inhibit the rapid proliferative growth of the cell. नॉर्मल बॉडी के अंदर रैपिड प्रोलिफरेटिव ग्रोथ सेल की नहीं होती क्योंकि अल्लाह ताला ने प्रोटो-ऑन्कोजीन्स के साथ साथ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स भी रखे हैं. अब बात को गौर से समझे क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री के पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द oncogenes and the tumor suppressor genes. It is very good written in a box in Harper's Biochemistry. I will be sending this box in your group. So oncogenes, tumor suppressor genes, oncogenes की ग्रोथ को रोकते हैं. अब अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी तब ट्यूमर ज्यादा ग्रो करेगा. आई रिपीट अगेन, अगर प्रोटोन को जीन के अंदर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी, ऐसी म्यूटेशन जो उसके फंक्शन को इनहांस कर देगी, और ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर ऐसी म्यूटेशन जो इसके फंक्शन को इनहिबिट कर देगी क्योंकि इसने ग्रोथ ऑफ सेल को इनहिबिट करना था, अब ये खुद इनहिबिट हो गया तो सेल ग्रोथ करेगा. दैट इज द लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन. ऑन्कोजीन्स के अंदर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी, ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी. प्रोटोन को जीन का अगर एक भी अलील डिसरप्ट हो जाए, म्यूटेट हो जाए, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोटोऑन्कोजीन और ऑन्कोजीन. अगर प्रोटोऑन्कोजीन का एक भी अलील, यू विल सी दिस इन द टेबल, और अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन के दोनों अलील म्यूटेट हो तब ये अपना फंक्शन लॉस करता है. सो ये डिफरेंसेस हैं प्रोटोऑन्कोजीन में और ट्यूमर सप्रेसर जीन में. दोज जीन्स, द प्रोडक्ट ऑफ दोज जीन्स दैट इनहिबिट द
growth, proliferation of the cell, that are the tumor suppressor genes. Those genes which causes the normal growth are the proto-oncogenes. When there is gain of function mutation in the proto-oncogenes, they will be converted into the oncogenes, and they result in the formation of rapid proliferative cells and the development of cancer. So remember, for the development of cancer, it is necessary that both the oncogenes and tumor suppressor genes undergo mutation. If there is mutation in only the proto-oncogenes or in only the tumor suppressor genes, the cancer will not develop. The cancer will not develop. You can see this from again diagram, mutation in proto-oncogenes or tumor suppressor genes. So it is necessary for the cancer to, in order to cancer to develop, there must be mutation in proto-oncogenes as well as a tumor suppressor genes. अब ये म्यूटेशन प्रोटो ऑन्कोजीन्स के अंदर और ट्यूमर स्प्रेसर जीन्स के अंदर होती कैसे हैं, इनके रिजल्ट्स क्या होते हैं, दैट इज द बेसिक टॉपिक ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन, दैट इज एट योर लेवल. सेकेंडरी बायोकेमिस्ट्री में यही है कि म्यूटेशन इन प्रोटो ऑन्कोजीन्स में और ट्यूमर स्प्रेसर जीन्स में होती कैसे है. So first of all, I would like to start with the cell cycle. Normal, you know that the interphase of the cell, the interphase of the mitosis is divided into different phases, forming a cell cycle. So on the basis of the cells that enter into the cell cycle, there are three types of cells, the different types of cells that go through the cell cycle. कुछ ऐसे सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर जो रैपिडली बार बार सेल साइकिल के अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी रैपिड ग्रोथ होती है. दीज आर कॉल्ड एज लेबाइल सेल्स. इनको हम कहते हैं लेबाइल सेल्स. फॉर एग्जांपल द स्क्वेमस एपिथेलियम that is present on skin. The skin rapidly undergoes division. हम कहते नहीं कि skin replace हो जाती है, rapid proliferative growth होती है. These are the labile cells. कुछ cells ऐसे होते हैं जो सेल साइकिल में एक दफा जाते हैं और बाहर आ जाते हैं, that are called as permanent cells, such as neurons. Neurons जो होते हैं इनकी proliferative capacity बहुत कम होती है. थर्ड इज द स्टेबल सेल्स. दो सेल्स जब रिक्वायरमेंट हो उनकी पोलिफ्रेशन की, तब वो सेल साइकिल में जाते हैं. फॉर एग्जांपल द सेल्स ऑफ हेपेटोसाइट्स, द लिवर. आपने पढ़ा होगा कि लिवर के अगर हम ट्रांसप्लांट करें, थोड़ा सा सेक्शन रिमूव करके, तो लिवर रैपिडली ग्रोथ कर जाता है. क्यों करता है? व्हेन देयर इज अ स्टिमुलस, देयर इज अ सिग्नल. तो ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स दैट एंटर और गो थ्रू द सेल साइकिल, देयर आर द थ्री टाइप्स, द लेबाइल सेल्स, द परमानेंट सेल्स एंड द स्टेबल सेल्स. So the chances of development of cancer is more in labile cells because they are already rapidly growing. They are already rapidly growing. So coming towards the eukaryotic cell, that is the cell cycle. This is the very important. This is the G1. These cell cycle comprises of the interphase, and what are the different sub phases of this interphase? The G1 phase, the S phase, the G2 phase and ये जो G1 फेज है ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है. इट इज द एंट्री एंड एग्जिट साइट ऑफ द सेल साइकिल. G1 फेज एंट्री और एग्जिट साइट है सेल साइकिल का. ये बातें गौर से सुने. G1 फेज एंट्री और एग्जिट साइट है सेल साइकिल का. इसको कहते हैं गैप वन फेज. G फॉर गैप. इसका मतलब है इस फेज के अंदर सेल के अंदर कोई चेंजेस नहीं आती, उसकी ग्रोथ नहीं होती. G1 फेज से सेल जाता है S फेज में. S फेज के अंदर डीएनए सिंथेसिस होती है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है. S फेज के बाद G2 फेज आता है, गैप 2 फेज. फिर अगेन इस फेज के अंदर ग्रोथ नहीं होती. क्यों नहीं होती वो हम पढ़ेंगे. फिर ये जाता है माइटोसिस फेज के अंदर. सेल जो होता है माइटोसिस में न्यूक्लियर डिवीजन होती है. फिर न्यूक्लियर डिवीजन से M से G1 के अंदर आता है. एज दिस इज द एंट्री एंड एग्जिट साइड, सो इससे दोबारा लीव कर जाता है सेल. अगर रैपिड ग्रोथ होगी इसी के अंदर ही घूमता रहेगा बार बार. अब ये निज़ाम अल्लाह ताला का इतना स्ट्रॉन्ग है कि इन फेजेस के दरमियान में G1 से S ट्रांजिशन में, S से G2 ट्रांजिशन में, G2 से M ट्रांजिशन में अल्लाह ताला ने चेक पॉइंट्स रखे हैं. ऐसा नहीं है कि सेल एंटर हो गया G1 में तो चलता जाएगा, ऐसा नहीं है. अगर सेल G1 में एंटर हुआ है, G1 से S में
तब एंटर होगा अगर वो प्रॉपरली डेवलप हो गया फॉर द डीएनए सेंसिस। एस फेज को वो तब लीव करेगा जब प्रॉपर उसके डीएनए सेंसिस हो जाएगी। अगर वो एस फेज को प्रॉपर डीएनए सेंसिस के बगैर लीव कर दे, इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ म्यूटेशन, क्योंकि नॉर्मल अभी सेंसिस हुई नहीं है, पहली वो अगले फेज में चला गया। तो अल्लाह ताला ने इन ट्रांजिशन पॉइंट्स में गैप 1 से एस में, एस से G2 में जाने के लिए कुछ चेक पॉइंट्स रखे होते हैं, एंड दीज चेक पॉइंट्स आर वेरी लाइकली टू बी आस्क्ड इन प्रॉफ, they were asked in my prof also, and there's the most important things, यही हमारा आज का बेसिक लेक्चर होगा। So what are these checkpoints? These are these, you can see these are the cyclin proteins। अब देखें G1 से S ट्रांजिशन में साइक्लिन D चेक पॉइंट है, ये प्रोटीन्स हैं, ये कैसे काम करती हैं आई विल टेलिंग यू। G1 से S में D भी है और E भी है, G1 और फिर S फेज से G2 ट्रांजिशन में साइक्लिन A प्रोटीन है, फिर G2 से M फेज में साइक्लिन B प्रोटीन है। So these are the checkpoint proteins that causes the movement of cell from one phase to other phase। अगर ये चेक पॉइंट्स डिस्टर्ब हो जाए, इनहिबिट हो जाए, सेल जो है वो घूमता रहेगा इसके अंदर, बार बार घूमता रहेगा, जिसकी वजह से कैंसर डेवलप होगा। सो दीज आर द प्रोटीन्स, यू कैन सी द G1 से फेज, G1 फेज के अंदर जो एक्ट कर रही थी साइक्लिन डी, G1 से S ट्रांजिशन में जो एक्ट कर रही थी दैट इज साइक्लिन E, S फेज में जो एक्ट कर रही थी साइक्लिन A, S से M ट्रांजिशन में जो कर रही थी साइक्लिन B। अब होता क्या है, ये साइक्लिन प्रोटीन्स जो होती हैं ये अपना काम तब तक नहीं करती जब तक ये एक और प्रोटीन्स के साथ बाइंड ना कर जाएं, दैट इज cyclin dependent kinase। So these cyclin proteins activate the cyclin dependent kinases, and for each cyclin protein, and this complex, when the cyclin is bound to cyclin dependent kinase or the cyclin dependent kinase is bound to the cyclin, this complex is functional। अगर ये दोनों लैदा हो जाएं ये अनफंक्शनल हो जाएंगे। अभी आपको चीजें समझ आएंगी जब मैं आगे चलूंगा। तो अल्लाह ताला ने हर साइक्लिन प्रोटीन का साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज भी स्पेसिफिक रखा है। साइक्लिन डी का 4 6 होता है, ई का 2 होता है, ए का 2 और 1 होता है, बी का 1 होता है। सो यू मस्ट रिमेंबर व्हाट आर द दीज चेक पॉइंट्स, एमसीक्यूज के लिए कि किस चेक पॉइंट पे कौन सी प्रोटीन है और उसका सी के डी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज पार्टनर क्या है। So again a diagram, very beautiful diagram from the Leninger। So you can see CKD initiates the mitosis here, CKD mitosis start करेगा, इधर से क्या होगा, अब इसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियर डिवीजन होगी, यहाँ पे क्या है CKD1 साइक्लिन B चेक पॉइंट, फिर जब यहाँ से M से G1 में आएगा, फिर G1 से S में जाएगा, S से G2 में जाएगा। The most important checkpoint is G1S checkpoint। G1S checkpoint जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये खराब हो गया तो सेल फटाफट डीएनए सेंसिस के अंदर चला जाएगा और रैपिड प्रोलिफरेशन होगी इसके अंदर। This checkpoint is called as the retinoblastoma checkpoint, the restriction point R। ये रेटिनोब्लास्टोमा क्या है, ये कैसे काम करता है मैं आपको बताऊंगा। तो या बस ये याद रखें G1 to S जो है सबसे इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है। डिफरेंट चेक पॉइंट्स हैं जिनके अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है वो कौन सा है, G1 to S है। और वहां पे साइक्लिन डी, साइक्लिन E या साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस 4 और 2 इन्वॉल्व हैं, और इस चेक पॉइंट कहते हैं रेटिनोब्लास्टोमा चेक पॉइंट, द रिस्ट्रिक्शन पॉइंट, रेटिनोब्लास्टोमा, रेटिना। सो यू कैन सी अब क्या होता है, जब साइक्लिन जो प्रोटीन है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के साथ मिलती है तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करने के लिए, अब ऐसा नहीं कि ये कॉम्प्लेक्स काम करता रहे, अल्लाह ताला ने हर चीज पे चेक बैलेंस रखा है। इस कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करने के लिए अल्लाह ताला ने एक और प्रोटीन रखी है, दैट इज साइक्लिन काइनेज इनहिबिटर्स। इनको हम स्मॉल p और साथ कोई लेटर से डोनेट करते हैं। ये हर कॉम्प्लेक्स की पर्टिकुलर होती है। So I repeat again, they are the cyclin proteins, they bound to specific cyclin dependent kinases, when in the bound form they become active, they regulate the checkpoints. How they regulate the checkpoints I will be telling you. So for their inhibition Allah Ta'ala has made some other proteins that are cyclin kinase inhibitors। These protein inhibits these complexes ताकि ये ज्यादा काम ना करते रहें। अब
हमारे पास वापस आते हैं, ये सेल साइकिल था, सेल साइकिल की फेजेस थी। अब बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम ये वाली। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स के रिलेटेड और ट्यूमर प्रेशर जीन्स के रिलेटेड। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, हाउ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स, इलस्ट्रेट एंड गिव डिफरेंट मैकेनिज्म्स। सो प्रोटो ऑन्कोजीन कैसे ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है, दे आर द थ्री मेजर मैकेनिज्म्स। थ्री मेजर मैकेनिज्म्स की मदद से प्रोटो ऑन्कोजीन ट्यूमर्स ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप देखें, प्रोटो ऑन्कोजीन है, हर जीन का आप लोग पढ़ेंगे, एक कोडिंग पार्ट होता है दैट इज गिवन इन द ब्लू, एक प्रोमोटर पार्ट होता है, आप लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, एक प्रोमोटर पार्ट होता है, एक कोडिंग पार्ट होता है। प्रोमोटर पार्ट कोडिंग पार्ट की प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करता है। अब देखें क्या क्या वजह हो सकती है, रेडिएशन और केमिकल कार्सिनोजिन। ऐसी रेडिएशन या केमिकल कार्सिनोजिन जिसने कोडिंग रीजन में या प्रमोटर रीजन के अंदर ऐसी म्यूटेशन की है जिसकी वजह से हाइपर एक्टिव प्रोटीन हो गई है, ज्यादा से ज्यादा कोड करी जा रही है, या प्रमोटर रीजन के अंदर ऐसी म्यूटेशन की है कार्सिनोजिन ने या रेडिएशन है कि प्रोटीन, ये जो जीन है ये रैपिडली डिवाइड करना शुरू कर गया। या दूसरा मैकेनिज्म क्या हो सकता है, जीन एम्प्लीफिकेशन। ऐसी म्यूटेशन हुई है बॉडी के अंदर कि जो कोडिंग पार्ट है यही म्यूटेट करता गया, ज्यादा से ज्यादा होता गया। अब ये जब ज्यादा से ज्यादा होता जाएगा तो प्रोटो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरी जो बात है, इसको गौर से समझें, दिस इज द जीन रीअरेंजमेंट। ऐसा एक जीन आया है जिसका प्रमोटर रैपिडली ग्रोथ करता था। फॉर एग्जाम्पल स्क्वेमस सेल्स जो रैपिडली ग्रो करता था, इसका प्रमोटर ऐसी म्यूटेशन हुई है बॉडी के अंदर, उतर के लग गया है न्यूरॉन के जीन के प्रमोटर के साथ। नॉर्मली न्यूरॉन का जीन जो होता है इतना प्रोलिफरेट नहीं करता, हमने पढ़ा परमानेंट सेल्स हैं। अगर ऐसी म्यूटेशन हो कि उसके प्रोटॉन को जीन के प्रमोटर रिप्लेस हो जाए स्क्वेमस सेल के प्रमोटर से, तो ये दोबारा जीन रैपिडली ग्रो करेगा और कैंसर डेवलप होगा। या ऐसा हो सकता है कि दो कोडिंग रीजन्स डिफरेंट प्रोटीन्स के, यू कैन सी हियर जीन वाई आया है और इसके साथ मिल गया है, जिसकी वजह से ये प्रोटीन हाइपर एक्टिव हो गई है, अवर प्रोडक्शन अपनी स्टार्ट करती है। सो व्हाट इज द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स इनटू ऑन्कोजीन्स, दैट इज थ्री वेज: radiation or chemical carcinogen, the gene amplification, and the gene rearrangement. So what are the different causes of mutation? In mutation की causes क्या क्या हो सकती हैं? This is a very good temperature table। और ये देखें, अगर हम डीएनए लेवल पे जाएं, डीप्यूरिनेशन हो सकती है। ये टेबल प्रॉफ में बहुत दफा आया है, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कौन सा टेबल। डीप्यूरिनेशन, एक प्यूरिन जो है बेस लॉस हो गया है, जिसकी वजह से जब ये डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो नॉर्मल डीएनए की तरह नहीं होगा। जब ये नॉर्मल डीएनए की तरह नहीं होगा तो क्या होगा, द कैंसर विल डेवलप, द कैंसर विल डेवलप। So someone has raised hand. If there is any question from your side, you can ask. So you can see if the purine base the purine base is lost due to which the DNA replicates. अब जब DNA replication होगी तो यहाँ कोई और आगे बेस लग जाएगी, नॉर्मल चेक बैलेंस लॉस हो जाएगी, जिस वजह से होगा। हम बेसिकली पढ़ रहे हैं म्यूटेशन किस किस तरह हो सकती है। अगर साइटोसिन की डीएमिनेशन हो जाए, साइटोसिन कन्वर्ट हो जाए यूरासिल में, फिर अगेन क्योंकि a change is the DNA. What is the mutation? A mutation is the permanent change in the DNA. A permanent change in the DNA is mutation. So there are various causes of mutation. So what are these? You can see this table was asked what are the different type of mutagens, the chemical and the radical. Chemical जो होती है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, क्या करता है, डीएमिनेशन करता है। नाइट्रोजन मस्टर्ड होता है, अल्काइलेटिंग एजेंट है। इथाइल मीथेन सल्फोनेट है, ये भी अल्काइलेटिंग एजेंट है। सो डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये कैसे म्यूटेशन करते हैं। ऑन म्यूटेशन, फिर ये वाला टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ डैमेज क्या हो सकते हैं डीएनए को। ये हमारे सैंडम में आया था, ये हार्पर से सिंगल बेस अल्टरनेशन होती है। ये जो कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं, मैं आपको भेज दूंगा। सिंगल बेस अल्टरनेशन हो सकती है, डीप्यूरिनेशन, डीएमिनेशन, एल्काइलेशन, deamination of cytosine to uracil, deamination of adenine to hypoxanthine। टू बेस लाइगेशन हो सकती है कि बेस चेंज हो रही है, यू विल स्टडी दिस। चेन ब्रेक्स हो सकती हैं, डीएनए की चेन आयोनाइजिंग रेडिएशन से ब्रेक हो गई है, या क्रॉस लिंकेजेस क्रिएट हो गई हैं ऑपोजिट बेसिस में, या फिर एक ही स्टैंड के सिमिलर बेसिस में।
So any change in the DNA is the mutation. Any change in the DNA is mutation. So the proto-oncogenes are converted into oncogenes by different types of mutations. Either they can be radiation or chemical carcinogen, they can be gene amplification and they can be gene rearrangement. ऐसे एक प्रोटोन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होता है. सो इस सिग्नलिंग मैकेनिज्म को देखें. अब बात मेरी गौर से समझनी है आप लोगों ने. ये एक सिग्नलिंग मैकेनिज्म है जिसकी वजह से, फॉर एग्जांपल इंसुलिन, वेरी गुड, दो फॉर एग्जांपल द मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन, this growth factor binds to the receptor, then there is receptor second mechanism signaling start होती है either the MAP kinase or the G protein, जिसकी वजह से आगे जीन रेगुलेशन होती है, डीएनए सेंसेस होती है. अब बात को मेरी गौर से समझें. अगर ग्रोथ फैक्टर की जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो ग्रोथ फैक्टर ज्यादा से ज्यादा सिंथेसाइज होगा. जब ये ग्रोथ फैक्टर ज्यादा से ज्यादा सिंथेसाइज होगा, ज्यादा से ज्यादा रिसेप्टर से बाइंड करेगा. ज्यादा से ज्यादा रिसेप्टर जब एक्टिवेट होंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन सेंसेस होगी, कैंसर डेवलप होगा. सो द जीन ऑफ दिस ग्रोथ फैक्टर इज प्रोटोऑन्कोजीन बिकॉज व्हेन इट इज बिकम रैपिडली एक्टिव इट रिजल्ट इन कैंसर. अब इस मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करें. अगर इस मेम्ब्रेन प्रोटीन के अंदर ऐसी म्यूटेशन हो जाए कि ये लाइजेंड जो ग्रोथ फैक्टर है उसको बाइंड किए बगैर एक्टिव होके सेकंड सिग्नलिंग मैकेनिज्म स्टार्ट कर दे, सो there will be rapid transduction of the signals and there will be rapid production of genes. रैपिड जीन रेगुलेशन होगी, रैपिड और ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज होगी. तो इस रिसेप्टर का जो जीन है वो भी प्रोटॉन को जीन है. अगर इस अडॉप्टर प्रोटीन, ये जो अडॉप्टर प्रोटीन है, इसके अंदर ऐसी म्यूटेशन हो जाए कि ये रिसेप्टर के एक्टिवेशन के बगैर ही एक्टिव होती रहे, ये आगे सिग्नल भेजती रहेगी, सो इस प्रोटीन का भी जीन प्रोटॉन को जीन है, क्योंकि अगर उसके अंदर एक्टिव हो जाए तो कैंसर डेवलप हो सकता है. सिमिलरली जी प्रोटीन, दिस रिसेप्टर काइनेसिस प्रोटीन एंड दिस रेगुलेटरी प्रोटीन्स, किसी लेवल पे भी इस पाथवे में म्यूटेशन आ जाए, एक्टिवेटिंग म्यूटेशन, तो वो क्या हो जाएगी, कैंसर डेवलप करेगी. इन प्रोटीन्स के जो जीन्स होंगे वो प्रोटॉन को जीन्स होंगे. क्यों? क्योंकि उसके अंदर अगर म्यूटेशन आ जाए तो एक्टिव हो जाएंगे. सो दिस इज अ टेबल गिवन इन द मार्क्स. आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये बताने के लिए आप देख लें कि ये देखें प्लेटेड ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स हैं, इसकी प्रोटॉन को जीन है सिस. अगर इसकी ओवर एक्सप्रेशन हो जाए तो ओस्टियोसार्कोमा, बोन का ट्यूमर, एस्ट्रोसाइटोमा, न्यूरॉन ट्यूमर डेवलप हो सकते हैं. फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है, इसकी प्रोटॉन को जीन ये है INT2. अगर इसकी एम्प्लीफिकेशन हो जाए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, एक्टिवेशन एम्प्लीफिकेशन, जो हमने पढ़ी थी जीन एम्प्लीफिकेशन. सो ब्रेस्ट कैंसर, ब्लैडर कैंसर, मेलानोमा स्किन कैंसर, ब्लैडर का कैंसर, ब्रेस्ट का डेवलप. इस तरह ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स की प्रोटीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए, सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन्स के अंदर म्यूटेशन हो जाए, हार्मोन रिसेप्टर के अंदर म्यूटेशन हो जाए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के अंदर जो जीन को म्यूटेशन हो जाए, और सेल साइकिल रेगुलेटर के अंदर म्यूटेशन हो जाए, वो मैं अभी आपको बताऊंगा. सो these are the oncogenes, different oncogenes, how they become activated. I already told you what is the mechanism of action of activation. So ये सारी स्टोरी जो मैंने आपको सिंपल बताई है यहाँ पे लिखी है. So the cell cycle, this diagram already shown you how the cell cycle is regulated, what are the cyclin dependent. You can see from this diagram, this is a good diagram, that you can see the cyclin dependent kinases, this is an active complex. When the cyclin kinase inhibitor binds, the complex becomes inactive. सो द फर्स्ट, अच्छा, सो जो हम डिटेल में पढ़ेंगे ना वो हमारे पास होंगी ट्यूमर सप्रेसर जीन्स. अब आपने गौर से समझना है, 2-3 मैकेनिज्म्स हैं, अगर वो आपको समझ आ गए आज तो आप समझें कि आपकी जो है ना वो आज का लेक्चर पूरा हो गया. अब ये जो आते होते हैं, ये मेरे पेपर में भी आया था. अब बात गौर से सुनिए. हमने प्रोटॉन को जीन्स के बारे में पढ़ा, ये प्रोटॉन को जीन्स होते हैं, ऐसे ऐसे इनसे काम होता है. बस प्रोटॉन की जीन्स के बारे में यही था कि कैसे एक्टिवेट होते हैं, और कोई एग्जांपल्स आपको पता है तो बता दें. अब हमारे ट्यूमर स्प्रेसर जीन की तरफ, जो हमारे पास मेजर थिंग है, दैट इज ट्यूमर स्प्रेसर जीन्स. अब मेरी बात आपने गौर से सुननी है. मैंने आपको बताया था G1 to S ट्रांजिशन मेजर ट्रांजिशन पॉइंट है. यहाँ पे अल्लाह ताला ने मेजर चेक पॉइंट्स रखे हुए हैं. इसका मेजर चेक पॉइंट क्या है, रेटिनोब्लास्टोमा. अब हम डिफरेंट ट्यूमर स्प्रेसर जीन्स पढ़ने जा रहे हैं और उनका डिफरेंट मैकेनिज्म है. और
ट्यूमर प्रेशर जीन्स क्या थे, जो ग्रोथ को रोकते थे। अगर इनके अंदर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो तो कैंसर डेवलप होता है। अब हम इस चीज को प्रूव करेंगे। पहले हमने प्रूव किया अगर प्रोटोन को जीन के अंदर म्यूटेशन हो तो उनको जीन्स बनते हैं और कैंसर डेवलप होता है, जैसे हमने ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर का बताया। अब हम डिफरेंट बॉडी के मेजर ट्यूमर स्प्रेड से जीन को पकड़ेंगे और बताएंगे कि अगर इनके अंदर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो, कि मतलब इनका फंक्शन लॉस हो जाए, तो कैंसर डेवलप होगा। रिमेंबर आई ऑलरेडी टोल्ड यू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन ट्यूमर स्प्रेसर जीन एंड गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन प्रोटॉन को जीन इज नेसेसरी। अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी कैंसर डेवलप नहीं होगा। कैंसर की डेवलपमेंट के लिए और भी बहुत सी चीजें चाहिए होती हैं। द डेवलपमेंट ऑफ अ कैंसर इज व्हाट आई विल बी टेलिंग यू, कैसे डेवलप होता है। ना सिर्फ म्यूटेशन इन प्रोटॉन को जीन्स और द ट्यूमर स्प्रेसर जीन इज नेसेसरी, other things are very important and necessary for the survival of these cancer cells. So जो मेजर ट्रांजिशन पॉइंट क्या था, वो क्या था, रेटिनोब्लास्टोमा चेक पॉइंट था। अब बात को गौर से समझें। ग्रोथ फैक्टर आके बाइंड किए, रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, मैप काइनेज पाथवे एक्टिवेट हुआ। उस मैप काइनेज पाथवे ने जाकर हमारे पास एक जीन को रेगुलेट किया। उस जीन की रेगुलेशन से जो प्रोटीन बनी वो थी साइक्लिन डी। साइक्लिन डी बॉडी से सिग्नल आया कि ग्रोथ करो सेल की। ग्रोथ फैक्टर आके उस सेल के जिस ऑर्गन की ग्रोथ होनी थी उस ऑर्गन के, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अडल्ट, चाइल्डहुड से अडल्ट में ट्रांजिशन आ रही है, बॉडी के ऑर्गन्स ग्रो कर रहे होते हैं, बॉडी के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज हो रहे होते हैं जो उस ऑर्गन्स के सेल के ऊपर जाके बाइंड करते हैं। मैप काइनेज पाथवे एक्टिवेट होता है, सेल सिग्नलिंग होती है, जीन एक्टिवेट होता है। उस जीन ने सिंथेसाइज की कौन सी प्रोटीन, देयर इज इंडक्शन ऑफ साइक्लिन डी, साइक्लिन डी प्रोटीन। अब इस साइक्लिन डी प्रोटीन के जो काइनेसिस थे वो 4-6 थे, मैंने आपको पहले बताया। दिस साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, दिस साइक्लिन डी विल बाइंड टू साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4 and 6. When this cyclin D protein that is synthesized as a result of growth factor binding to receptor binds to this cyclin dependent kinase 4 and 6, they become activated complex. मैंने आपको बताया था ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। As the name shows, काइनेज। अब ये कॉम्प्लेक्स जब एक्टिवेट हो जाएगा तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी। ये क्या करेगी, ये करेगी रेटिनोब्लास्टोमा, एक प्रोटीन होती है जो रेटिनोब्लास्टोमा जीन से आती है, उसको एक्टिवेट करती है। अब मेरी बात गौर से समझिए। अब ये जो रेटिनोब्लास्टोमा है ना, ये देखिए मेरे डायग्राम, ये नॉर्मली E2F प्रोटीन को बाइंड करके रखती है अपने साथ। ये देखें जैसे इसको पकड़ के रखा हुआ है जोर से। रेटिनोब्लास्टोमा जीन नॉर्मली बाइंड्स द E2F। ये जो रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन है, जो रेटिनोब्लास्टोमा जीन का प्रोडक्ट है, ये E2F प्रोटीन है, इसको बाइंड करके रखती है। E2F प्रोटीन इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये देखें E2F प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। जब ये डीएनए से बाइंड करती है, जीन एक्सप्रेशन होती है, सेल साइकिल प्रोग्रेशन होती है। अब बात गौर से समझे, अगर रेटिनोब्लास्टोमा E2F प्रोटीन को नहीं छोड़ेगी, सेल साइकिल ग्रो नहीं करेगा, सेल साइकिल आगे नहीं जाएगा, क्योंकि जीन की इंडक्शन नहीं होगी, E2F आगे डीएनए से बाइंड नहीं करेगी, सिग्नल नहीं जाएगा कि G1 से G2 ट्रांजिशन करो। अगर कोई ऐसी म्यूटेशन आ जाए E2F के अंदर जो इसको इतना एक्टिवेट कर दे कि इसको जरूरत ही ना पड़े रेटिनोब्लास्टोमा के साथ बाइंड करने की, ये डीएनए के साथ बाइंड करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी, सेल की ग्रोथ होती रहेगी, ज्यादा से ज्यादा डीएनए की इंडक्शन होगी, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बनेगी। अब अगर रेटिनोब्लास्टोमा का फंक्शन लॉस्ट हो जाए, अगर रेटिनोब्लास्टोमा का फंक्शन लॉस हो जाए, रेटिनोब्लास्टोमा E2F को बाइंड नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से E2F बाइंड करती रहेगी। एक तो यह है कि E2F के अंदर एक्टिवेटिंग म्यूटेशन आई है, एक तो यह रेटिनोब्लास्टोमा के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आई है। रेटिनोब्लास्टोमा का काम क्या है, E2F प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को पकड़ के रखना ताकि वो आगे ना चली जाए। जब तक सिग्नल नहीं आ रहा, पीछे से सिग्नल आया कि हाँ भाई अब सेल G1 to S ट्रांजिशन करवा दो, इसको एक्टिवेट कर दो, रेटिनोब्लास्टोमा को साइक्लिन डी काइनेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4 और 6 ने बाय एक्टिवेट किया, फोस्फोराइलेट किया, इसने E2F को छोड़ दिया। जब इसने E2F को छोड़ दिया, E2F जाके बाइंड किया। अगर इसका फंक्शन लॉस हो जाए तो E2F वैसे ही जाके बाइंड करता रहेगा। हैंस E2F इज अ प्रोटॉन को जीन एंड द रेटिनोब्लास्टोमा इज द ट्यूमर स्प्रेसर जीन्स। क्योंकि अगर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो रेटिनोब्लास्टोमा के अंदर
तो हमारे पास E2F ज्यादा से ज्यादा डीएनए की साइड बाइंड करेगा, और अगर E2F के अंदर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो तो E2F जाके बाइंड करेगा. सो ये थी थिंग. दिस रेटिनोब्लास्टोमा इज कॉल्ड एज द गवर्नर ऑफ genome. Most important viva question. They ask you what is the governor of genome. You will be saying the governor of genome is retinoblastoma because it governs the genes, it governs the signals to enter into the S phase. इफ देर इज समथिंग, अगर जो गवर्नर होता है क्या करता है, ऑर्डर्स देता है कि इसको वहां ले जाओ, इसको वहां ले जाओ, ये कर दो. अगर रेटिनोब्लास्टोमा का यही काम है, अगर इसके पास सिग्नल आ जाए पीछे से गवर्न करता है, हाँ भाई चलो S1 के अंदर चले जाओ, ट्रांजिशन करा दो. अगर गवर्नर ही लॉस्ट हो जाए तो क्या होता है, पिछले जो निचले सारे लोग होते हैं वो अनइनहिबिटेड रहते हैं, वो एक्साइटेड हो जाते हैं, वो अपना काम बेधड़ंग तरीके से करने शुरू हो जाते हैं अगर उनके ऊपर कोई गवर्नर ना हो. तो दिस रेटिनोब्लास्टोमा इज द गवर्नर ऑफ जीनोम. रिमेंबर दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन. देयर इज अनदर थिंग, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द गार्डियन ऑफ जीनोम. गार्डियन का क्या काम होता है, गार्डियन बड़ा अच्छा बंदा होता है, देखभाल करता है, चोट लग जाए तो ठीक करता है बंदे अपने बच्चों, जो गार्ड जिसका गार्डियन होता है उसको वो उसकी तरबियत करता है, उनको ठीक करता है. अगर कहीं डैमेज आ जाए तो उस डैमेज को ठीक करता है. गवर्नर डैमेज को ठीक नहीं करता, गवर्नर का काम होता है ऑर्डर देना, हाँ भाई ये काम कर दो. So this was the retinoblastoma, the governor of genome. Remember, this is the governor of genome. क्वेश्चन क्या आता है आप लोग, मेरा वाला जो है 2017 18 का, जो 2018 का जो सेकंड ईयर का वैकेंसी का पेपर है, वेरी लास्ट क्वेश्चन आप जाके देखें, वहाँ क्वेश्चन आया है कि illustrate and explain how retinoblastoma is a tumor suppressor gene and give other examples of tumor suppressor gene. So जो हमारे पास अगला ट्यूमर suppressor जीन है, अच्छा ये टेबल है ट्यूमर suppressor जीन्स का, ये भी आया हुआ है, ये मैं आपको एंड में बताऊंगा जब मैं आपको सारे ट्यूमर suppressor जीन्स बता दूंगा. सो जो अगला ट्यूमर suppressor जीन है हमारे पास, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, द P53 ट्यूमर suppressor जीन, दैट इज द गार्डियन ऑफ जीनोम. रिमेंबर P53, ये आप देख रहे होंगे यहाँ बना हुआ है, P53 इज, दिस इज द गार्डियन ऑफ जीनोम. ये गार्डियन ऑफ जीनोम है. आपसे कोई पूछे व्हाट इज द गार्डियन ऑफ जीनोम, यू विल बी सेइंग P53. व्हाट इज द गवर्नर ऑफ जीनोम, यू विल बी सेइंग रेटिनोब्लास्टोमा, RB. अब बात गौर से समझे, अगर नहीं समझ आई दोबारा पूछ लें. अच्छा अब होता क्या है, whenever there is damage to the DNA, जब भी केमिकल UV या केमिकल डैमेज होती है या अल्ट्रावायलेट रेस से डीएनए की डैमेज होती है, जो उन्हें म्यूटेशन पड़ी है, ऐसा नहीं होता कि म्यूटेशन हुई फटाफट कैंसर डेवलप हो गया. फॉर द डेवलपमेंट ऑफ म्यूटेशन अल्लाह ताला ने बड़े निज़ाम रखे हुए हैं. वो क्या निज़ाम है, ट्यूमर suppressor जीन की म्यूटेशन होनी चाहिए, प्रोटॉन को जीन की म्यूटेशन होनी चाहिए, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ. अब जैसी डीएनए की डैमेज होती है ना, P53 जीन एक प्रोटीन बनाती है, P53 प्रोटीन, जो उस साइट ऑफ डीएनए डैमेज पे जाके बाइंड कर देती है. दिस यू कैन सी 1, ये P53 इस डीएनए डैमेज साइट पे जाके बाइंड करती है, और ये क्या करती है, ये P21 जीन के ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाती है. P21 जीन के ट्रांसक्रिप्शन को क्यों बढ़ाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया स्मॉल p जिसके साथ कोई नंबर लिखा हो इसका मतलब होता है साइक्लिन काइनेज इनहिबिटर है. ये साइक्लिन काइनेज इनहिबिटर 21 के जीन की ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाती है. जब भी डीएनए डैमेज होता है साइक्लिन काइनेज 21 ज्यादा सेंथेसाइज होता है. जब ये ज्यादा सेंथेसाइज होता है, ये साइक्लिन डी और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4 और 6 के कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर देता है. जब ये इसको इनहिबिट करता है, जब भी हमने पढ़ा है, तो रेटिनोब्लास्टोमा और E2F इनहिबिट हो जाता है, रेटिनोब्लास्टोमा E2F को पकड़ के रखता है. इसका क्या फायदा है, इसका फायदा ये है कि सेल साइकिल की ग्रोथ अरेस्ट हो जाए G1 फेज में, ताकि ये म्यूटेटेड डैमेज्ड डीएनए S फेज में ना चला जाए. अगर ये निज़ाम ना होता, ये पॉइंट यहाँ पे कंट्रोल ना होता, तो ये म्यूटेटेड डैमेज डीएनए S फेज में एंटर हो जाता. अगर ये म्यूटेटेड डैमेज डीएनए S फेज में एंटर होता, इसकी रेप्लिकेशन होती, मल्टीपल कॉपीज बनती, दोबारा दोबारा एंटर होता रहता, और दोबारा दोबारा म्यूटेटेड सेल्स बनते, कैंसर डेवलप होता. लेकिन अल्लाह ताला ने एक P53 प्रोटीन रखी है जो क्या सिंथेसाइज कर रही है, एक ट्रांसक्रिप्शन सिंथेसाइज कर रही है, P221 की ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से साइक्लिन डिपेंडेंट साइक्लिन काइनेज इनहिबिटर 21 सिंथेसाइज हो रहा है, जो साइक्लिन डी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4 और 6 के कॉम्प्लेक्स को रोक रहा है, जिसकी वजह से रेटिनोब्लास्टोमा वाला चेक पॉइंट रुक गया है. अब सेल एस फेज में तभी एंटर होगा
जब डैमेज को रिपेयर कर दिया जाएगा। अब इस डैमेज को रिपेयर कौन करेगा? P53 इटसेल्फ। P53 एक और जीन के ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाती है। इस 3 को देखें, GAD45 जीन। दिस GAD मींस ग्रोथ अरेस्ट एंड डेवलपमेंट डीएनए डैमेज रिपेयर। दिस GAD ग्रोथ अरेस्ट, एक तो ग्रोथ की अरेस्ट होगी पीछे, जब ग्रोथ की अरेस्ट होगी तब इसकी सिंथेसिस हुई इस GAD की, ग्रोथ अरेस्ट एंड डीएनए डैमेज रिपेयर प्रोटीन। अब ये क्या करती है? गैड उस पीछे जाके, यू देखें ब्लू कलर की, उस साइट ऑफ डैमेज डीएनए को रिपेयर करेगी, उस साइट ऑफ डैमेज को रिपेयर करेगी। अब देखें इसने क्या किया, P21 को सेंसाइज किया जिसने रेटिनोब्लास्टोमा को इनहिबिट कर दिया। चेक पॉइंट जो है हमारे पास, रेटिनोब्लास्टोमा को स्टिमुलेट किया, इसके कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट किया, चेक पॉइंट जो है वहां पे ग्रोथ रुक गई। फिर इसने दूसरा काम किया कि स्टार्ट किया रिपेयर को। तीसरा काम क्या करती है? ये क्या करती है, अगर अगर डीएनए सेंसिस को ये डीएनए डैमेज को ये रिपेयर ना कर पाए, अगर डीएनए डैमेज को ये रिपेयर ना कर पाए तो उसी डीएनए की अपोप्टोसिस कर देती है। अपोप्टोसिस इज द प्रोग्राम सेल डेथ। तीसरा काम ही करती है, बैक्स जीन होती है जो अपोप्टोसिस को एक्टिवेट करती है, उसको एक्टिवेट करके वो इसी डीएनए पे प्रेजेंट होती है। ये बाकी ट्रांसक्रिप्शन अलग डीएनए से हो रही होती हैं, ये वाली इसी डीएनए पे प्रेजेंट होती है, बैक्स प्रोटीन जो अपोप्टोसिस को एक्टिवेट करती है। जब P53 रिपेयर नहीं कर पाती, अपनी गलती को ये तस्लीम करती है। जब ये अपनी गलती को तस्लीम करती है, अपने ही डीएनए के अंदर, जिस डीएनए को रिपेयर कर रही होती है उसी के अंदर एक बैक्स जीन को एक्टिवेट करती है जो उस डीएनए की अपोप्टोसिस कर देती है। सो सी हाउ दिस इज द निजाम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला के। कैंसर ऐसे नहीं डेवलप होता, अगर म्यूटेशन होगी उसके अपोप्टोसिस भी करा रही है P53। और एक और काम क्या करती है, एंटी अपोप्टोटिक सिग्नल्स को इनहिबिट करती है, एपोप्टोसिस को स्टिमुलेट कर रही है, और जो अपोप्टोसिस को इनहिबिट करने वाले सिग्नल्स हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर BP3, उसको इनहिबिट कर देती है। क्योंकि वो अपोप्टोसिस को इनहिबिट करता है, सो इट इज इनहिबिटिंग द इनहिबिटर, so it is stimulating the apoptosis. So this is the P53. So see, this is the guardian of genome, this is the guardian of genome. So someone has raised hand, क्वेश्चन है किसी का तो पूछ ले, गार्डियन है ये जीनोम का। नो क्वेश्चन। सो ये गार्डियन जीनोम का क्यों है? ये गार्डियन जीनोम का इसलिए है कि एक तो इसने डैमेज को क्या किया, डिटेक्ट किया, फिर इसने डैमेज को डिटेक्ट करने से पहले के बाद सेल साइकिल की ग्रोथ को रोक दिया, सेल साइकिल की ट्रांजिशन को रोक दिया G1 टू S। फिर इसने डीएनए रिपेयर किया। अब डीएनए रिपेयर नहीं हो पा रहा तो इसने उस डीएनए की एपोप्टोसिस कर दी, उस डीएनए को तोड़ दिया, डैमेज कर दिया, प्रोग्राम सेल डेथ में चला गया। सो दिस इज द गार्डियन ऑफ जीनोम। गार्डियन का यही काम होता है कि रिपेयर करना डैमेज को और गंदगी को दूर करना। सो ये गंदगी है, दिस म्यूटेटेड डीएनए इज गंदगी टू द बॉडी, सो इसको ये खत्म कर देगी ताकि ये जाके आगे डेवलप ना हो। सो अगर P53 के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए, G1 टू S ट्रांजिशन इनहिबिट नहीं होगी, सेल जाता रहेगा इस फेज के अंदर, ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा म्यूटेटेड डीएनए रेप्लिकेट होगा, कैंसर डेवलप होगा। सो इन दिस वे the P53 is also a tumor suppressor gene. P53 is also a tumor suppressor gene. So remember P53 is also a tumor suppressor gene. So अब हम आगे चलते हैं, अब हम नेक्स्ट ट्यूमर suppressor gene को पढ़ते हैं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट थे, P53 और हमारे पास रेटिनोब्लास्टोमा। बस ये थोड़ा सा ही और रह गया, आपको समझ आ गई होगी कि कैंसर कैसे डेवलप होता है, और वायरस, कुछ वायरसेस के साथ हम इसको एंड करेंगे और कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। सो एक और हमारे पास है ट्यूमर प्रेसर जीन NF, ये NF लिखा हुआ है, न्यूरोफिब्रिन 1। अब जो मैप काइनेस पाथवे में क्या होता है कि रैस मोनोमेरिक जी प्रोटीन है, जब इसके साथ GTP बाइंड आके करता है तो ये एक्टिवेट होता है, आगे सिग्नलिंग जाती है, प्रोटीन सेंसिस होती है। ये देखें ऊपर वाली। अब इस रैस के अंदर ही एक डोमेन होती है GTPase डोमेन, इस रैस के अंदर ही एक डोमेन होती है GTPase डोमेन, जो GTP को तोड़ देती है, फटाफट सिग्नल रुक जाता है।
I repeat again. Is RAS is a monomeric G protein. नॉर्मल G प्रोटीन क्या होती है? हेप्टा हेलिकुलर हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन, अल्फा बीटा गामा सब यूनिट्स होते हैं. RAS प्रोटीन का सिर्फ एक सब यूनिट होता है अल्फा, इसको कहते हैं मोनोमेरिक G प्रोटीन. अब इस RAS सब यूनिट के पास जब GTP आगे बाइंड करता है तो एक्टिवेट होती है मैप काइनेस पाथवे, आगे सेल सिग्नलिंग जाती है. जब इस RAS की एक डोमेन होती है GTPase डोमेन, वो एक्टिव होती है तो GTP को वो तोड़ती है सेल इनहिबिट हो जाता है. ये जो अगली सिग्नलिंग इनहिबिट हो जाती है, रैफ अलग हो जाता है. अगर ये ना हो तो सेल ग्रो करता रहे. अब इस डोमेन को जो एक्टिवेट करती है वो होती है न्यूरोफिब्रिन 1 प्रोटीन. The GTPase domain of the RAS protein is activated by another protein, that is the neurofibrin 1 protein. If there is loss of function mutation in the neurofibrin 1 protein, there will be the activation of the there will be no activation of GTPase domain of the RAS protein. अगर NF1 के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए, GTPase डोमेन जो है RAS प्रोटीन की वो एक्टिव नहीं होगी. वो एक्टिव नहीं होगी, GTP नहीं टूटेगा, सेल सिग्नलिंग कंटिन्यू रहेगी, ज्यादा से ज्यादा जीन की ट्रांसक्रिप्शन होगी, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ज्यादा से ज्यादा सेल बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा सेल की प्रोलिफरेशन होगी, हेंस द कैंसर विल डेवलप. सो न्यूरोफिब्रिन 1 इज आल्सो अ ट्यूमर सप्रेसर जीन. अब आपसे किसी भी ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में पूछें तो आपने बता दें ट्यूमर सप्रेसर जीन्स आर दोज जीन व्हिच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द सेल्स, दे कॉजेस द सेल डेथ, they causes the regulated growth of cell. If there is loss of function mutation in the tumor suppressor gene, there will be the resultant development of cancer, provided that proto genes are also mutated. क्वेश्चन क्या आएगा? गिव सम एग्जांपल्स ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन. यू विल सेइंग न्यूरोफिब्रिन 1. कोई पूछे बायोकेमिकल बेसिस या डायग्राम बता के इसको एक्सप्लेन कर दें. फिर आपसे कोई पूछे गिव द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ हाउ रेटिनोब्लास्टोमा इज ट्यूमर सप्रेसर जीन, आप वो डायग्राम बताएं, एक्सप्लेन करते हैं. डोंट अंडर ये जो इतनी ज्यादा डिस्क्रिप्शन लिखी है इसके अंदर ना जाएं. वैसे मैंने आपको सारी बता दी, एक दफा इसको रीड कर लें तो ये आप लोग लिखें, फुल मार्क्स मिलेंगे. फिर आपसे पूछे, आप कहेंगे P53, तो आप वो डायग्राम बताएं, थोड़ा सा नीचे एक्सप्लेन करें. द डायग्राम इज सफिशिएंट. फिर और ट्यूमर सप्रेसर जीन बॉडी के अंदर कौन सी होती हैं? कैटेनिन्स. बस ये लास्ट हमारी ट्यूमर सप्रेसर जीन है, कैटेनिन्स. ये प्रोटीन्स ये होती हैं कैडेरिन्स. कैडेरिन्स प्रोटीन सेल के अंदर पड़ी होती है मेम्ब्रेन के, इनके ऊपर लगी होती हैं. ये जो सेल के अंदर होती हैं ये होती हैं कैटेनिन्स, और इसके जो अंदर लगी होती हैं वो होती, सॉरी आई रिपीट अगेन, ये जो सेल के अंदर प्रोटीन होती है ट्रांसपेरेंट, ये होती है कैडेरिन्स. इसके साथ एक प्रोटीन बाइंड करती है कैटेनिन्स. अगर कैडेरिन के अब इस कैडेरिन प्रोटीन की वजह से दो सेल्स आपस में बाइंड करते हैं. कैंसर सेल का एक और फीचर भी होता है कि दे आर ये एक दूसरे से स्टिकी नहीं होते, अनस्टिकी होते हैं. क्यों? अनस्टिकीनेस की वजह से ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को सेल छोड़ के बॉडी में फैल जाते हैं, मेटास्टाइज हो जाते हैं. अगर इस कैडेरिन की अंदर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो, ये प्रोटीन सेल्स को बाइंड नहीं करके रखेगी, सेल्स अनस्टिकी हो जाएंगे. जब सेल्स अनस्टिकी हो जाएंगे तो बॉडी में फैलने शुरू हो जाएंगे. जब बॉडी में फैलने शुरू हो जाएंगे कैंसर डेवलप हो जाएगा. सो हेंस कैडेरिन इज आल्सो अ ट्यूमर सप्रेसर जीन. फिर हमारे पास कैटेनिन्स होती हैं, सॉरी एपीसी होता है. एपीसी जो होता है इट इज द एडिनोपोलिप्लोसिस कोलोरेक्टल जीन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका पूरा एक सिंड्रोम है, लिंच सिंड्रोम, नॉन एडिनोमेटस कोलोरेक्टल पॉलीप्रोसिस, नॉन पॉलीप्रोसिस एडिनोमेटस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा. एक आपको आएगा क्लिनिकल आता होता है, वो जेनेटिक्स में है. ये एपीसी जो है ना जीन, इसकी प्रोडक्ट होती है एपीसी प्रोटीन. ये बीटा कैटेनिन को बाइंड कर रखती है. अगेन बीटा कैटेनिन जो होती है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये इसको डिग्रेड कर देती है. अगर एपीसी कैटेनिन को बीटा कैटेनिन को बाइंड नहीं करेगी, ज्यादा से ज्यादा बीटा कैटेनिन डीएनए के साथ बाइंड करेगी, ज्यादा से ज्यादा आगे प्रोटीन की सेंसिस होगी. सो अगर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए एपीसी के अंदर तो बीटा कैटेनिन अवेलेबल होगी, क्योंकि बीटा कैटेनिन को तोड़ कौन रही थी? एपीसी बाइंड करके. अब नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा बीटा कैटेनिन सेल डीएनए के साथ जाके बाइंड कर रही है, ज्यादा से ज्यादा सिग्नल जा रहा है. हेंस द जीन ऑफ बीटा कैटेनिन इज proto-oncogene and the gene of APC is tumor suppressor genes. So coming towards back again to this table, this is very important. It was asked in some questions. ये table आपको सारा आना चाहिए associated diseases के साथ.
अब देखिए एडिशन प्रोटीन है की एग्जांपल हमने कैडनिन पढ़ी, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो तो स्टमक कैंसर डेवलप हो सकता है। फिर हमारे पास सिग्नल ट्रांजिशन में एनएफ प्रोटीन की हमने एग्जांपल पढ़ी, न्यूरोफिब्रिन 1 की, अंडर द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, रैस के साथ लगी होती है। अगर इसकी नाम से पता लग रहा है म्यूटेशन हो जाए, लॉस ऑफ फंक्शन, किस कैंसर में ये म्यूटेट होती है, न्यूरोफिब्रोसार्कोमा, ये न्यूरोफिब्रोमेटोसिस में। फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के एक और एग्जांपल है WT1 दैट इज द विल्म्स ट्यूमर, अगर न्यूक्लियस के अंदर होता है इसकी म्यूटेशन हो जाए, लॉस ऑफ फंक्शन, तो विलियम ट्यूमर डेवलप होता है। इसी तरह हमारे पास साइक्लिन काइनेज इनहिबिटर, साइक्लिन काइनेज इनहिबिटर क्या थे, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और साइक्लिन को कम्प्लेक्स को इनहिबिट करते थे। अगर इनके अंदर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए, ये इनहिबिट नहीं करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा सिग्नल देंगे। हेंस द जीन ऑफ P16 इज आल्सो अ ट्यूमर सप्रेसर जीन। रेटिनोब्लास्टोमा की हमने एग्जांपल पढ़ ली, एज द नेम शोज ट्यूमर ऑफ द रेटिना कॉमन बिलो 3 years ऑफ एज, रेटिनोब्लास्टोमा। सेल साइकिल अपोप्टोसिस की हमने जो सेल साइकिल को या अपोप्टोसिस को रेगुलेट करी थी उसकी एग्जांपल पढ़ ली, उस क्लास प्रोटीन की P53। डीएनए रिपेयर आप लोग पढ़ेंगे, उसके अंदर जो प्रोटीन होती है BRCA1। एज यू नो द ब्रेस्ट कैंसर इज वेरी कॉमन, पाकिस्तान में बहुत लेट औरतें आती हैं ब्रेस्ट कैंसर के, इनके अंदर BRCA1 एंड BRCA2 जीन्स की म्यूटेशन होती है, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म खराब होता है। अब जो डीएनए म्यूटेशन होती है इसके लिए अल्लाह ताला ने कुछ रिपेयर मैकेनिज्म्स भी रखे हुए हैं, यू विल स्टडी इन दैट जेनेटिक्स। इस तरह नहीं है कि कैंसर डेवलप हो जाए। सो ये हमारे पास प्रोटोन को जीन्स के बारे में हमने पढ़ा, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के बारे में पढ़ा हमने। फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के। अच्छा ये वाला जो टॉपिक है कैंसर एंड अपोप्टोसिस, मास के अंदर ये वाला जो टॉपिक है मैं इसको बैक कर दूं, कैंसर एंड अपोप्टोसिस, ये वाला आपने नहीं करना। आपने जो मैंने ये नहीं करना, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन सिलेबस। सो कैंसर एंड अपोप्टोसिस के जितने भी पाथवे पूथवे लिखे हुए हैं ये सारे नहीं करने आपने। आपने प्रोटोन को जीन्स के बारे में पढ़ना है, कैसे एक्टिवेट होते हैं। अब ये देखें कैसे कैंसर डेवलप हो रहा है, ये देखें नॉर्मल एपिथेलियम थी, पहले लॉस ऑफ एपीसी, एपीसी हमने पढ़ा एडिनोमेटस पॉलीप्लोसिस कोलोरेक्टल जीन, जो ट्यूमर सप्रेसर जीन था, इसकी म्यूटेशन हुई, हाइपर प्रोलिफरेटिव एपिथेलियम हुआ, नॉर्मल ग्रोथ इनहिबिट नहीं हो पाई, फिर अर्ली एडिनोमा डेवलप हुआ, फिर प्रोटोन को जीन डेवलपमेंट हुई, फिर इंटरमीडिएट एडिनोमा हुआ, फिर एक और ट्यूमर सप्रेसर जीन को लेट एडिनोमा हुआ, फिर P53 की म्यूटेशन हुई कार्सिनोमा, फिर अल्टरनेशन हुई मेटास्टेसिस हुआ। सो इट इज अ मल्टी स्टेप्स प्रोसेस है, कैंसर मल्टी स्टेप प्रोसेस है। सो कैंसर रिक्वायर्स मल्टीपल म्यूटेशन, ऐसा नहीं है कि एक जीन की म्यूटेशन हुई हो गया। आपने इस टॉपिक को भी नहीं पढ़ना, इस टॉपिक को भी नहीं पढ़ना, सिर्फ ये डायग्राम देख लीजिएगा, कैंसर एंड अपोप्टोसिस नहीं पढ़ना। फिर ये जो एट मॉलिक्यूलर लेवल कैंसर इज डिफरेंट डिजीज, ये भी नहीं पढ़ना आपने टॉपिक। अब आपने सबसे आखिर में आ जाना है लास्ट पे, ये जो बायोकेमिकल कमेंट्स लिखी हुई है ना ये वाली वायरसेस की, ये आपने पढ़ने हैं। क्वेश्चन आता है गिव द आरएनए रेट्रोवायरसेस, बॉडी के अंदर 3 रेट्रोवायरसेस होते हैं आरएनए, HLT1 ह्यूमन टी सेल, ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस, टी सेल लिम्फोसाइट वायरस 1, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एंड हेपेटाइटिस C, ये आरएनए रेट्रोवायरसेस होते हैं। और आरएनए रेट्रोवायरस क्या होते हैं वो आप लोग पढ़ लेंगे। फिर इन तीनों का कैंसर डेवलपमेंट, कैसे कैंसर डेवलपमेंट करते हैं, ये 3-3-4-4 लाइंस में लिखी हुई है, आपको आनी चाहिए, ये आपने यहाँ से पढ़ लेनी है। HTLV1 जो होता है ये कपोसी सार्कोमा करता है, ये पूछते होते हैं कौन क्या क्या चीजें करता है, एडल्ट टी सेल ल्यूकोमा भी करता है, कपोसी सार्कोमा भी करता है। और ये कैसे करता है, ये सर्टेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को इनहिबिट करता है, प्रोटोन को जीन्स की म्यूटेशन करता है। फिर HIV है, HIV कपोसी सार्कोमा मोस्टली करता है। और अगर आपसे को पूछे कपोसी सार्कोमा कौन सा वायरस करता है कैंसर, तो आपने पहला नाम बताना है HIV। कपोसी सार्कोमा बेसिकली एक वेजल्स का ट्यूमर है, वेजल्स जो होती है ना आपके अंदर, जो बॉडी के अंदर ब्लड वेजल्स होती हैं, इसका ट्यूमर। ये कैसे करता है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इंटरल्यूकिन्स की, इसमें सारा मैकेनिज्म लिखा हुआ है। फिर इसी तरह बाकी कुछ वायरसेस के बारे में रखा है। तो ये 3 जो हेडिंग्स है ना, वायरसेस कौन से, रेट्रोवायरसेस HLT1, HIV1, हेपेटाइटिस C, और ये 3 वायरसेस के बारे में आपने कर लेना है। सो आई रिपीट अगेन, इस चैप्टर में यही कुछ था। what is cancer, what are proto-oncogenes, what are the oncogenes, how proto-oncogenes are converted into oncogenes, what is the function of retinoblastoma, how retinoblastoma act as a tumor suppressor gene, what is the guardian of genome, it is P53, how it acts, or how it is the proto-oncogene। फिर
कुछ चीज़ें हम यहाँ से देख लेते हैं। डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स आप कर लेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉन को जीन्स मैंने आपको बता दिए। आपको ये चीज़ें बेसिकली आनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेशक। इसकी आपको ये चीज़ें आनी चाहिए कि किस तरह नॉर्मल सेल्स कैंसर में जाते हैं, कैंसर की कॉज क्या हो सकती है, म्यूटेशंस के बारे में आपने बताना है, केमिकल म्यूटेशन, रेडिएशंस, फैमिली इनहेरिटेड हो सकते हैं, डैमेज टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेज के जो मैंने अब तक सिंगल बेस, डबल बेस, केमिकल म्यूटेशन का जो बॉक्स दिखाया था, गेन ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन कौन सी होती हैं, कैसे होती हैं, प्रोटॉन को जीन्स के होते हैं, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ ऑनको जीन्स के होते हैं, ऑनकोजेनिक वायरसेस कैसे होते हैं, कॉज करते हैं म्यूटेशन, म्यूटेशन इन रिपेयर एंजाइम्स कौन कौन सी होती हैं। सो यू कैन सी इट इज अ नॉर्मल एपिथेलियम, देन देयर इज जैसे जैसे म्यूटेशन होती रहेगी कैंसर डेवलप होता रहेगा, एडिनोमा बनेगा, फिर एडिनोकार्सिनोमा बनेगा, फिर ये बॉडी में फैल जाएगा। सो कैंसर इज अ मल्टी स्टेज प्रोसेस। फिर वही एग्जांपल, लोकलाइज ट्यूमर है, ग्रोथ होती रहेगी, सेल्स बाहर आएंगे और आगे फिर पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएंगे। दे कैन रिजल्ट इन दैट। दिस इज द स्टेज 1, दिस इज स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। मोस्टली हम कहते हैं स्टेज 4 कैंसर है, शौकत खाना वाले नहीं ले रहे और खतरनाक है, क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी में फैल गया। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। म्यूटेशन जो होती हैं वो अगर स्पर्म्स के अंदर आ जाए तो पूरी बॉडी इफेक्ट होती है। इसको हम क्या कहते हैं? जर्म लाइन म्यूटेशंस, या गमीट्स के अंदर आ जाए। अगर फ्यूजन के बाद एम्ब्रियो के अंदर सोमैटिक म्यूटेशन आ जाए, उनको कहते हैं सोमैटिक म्यूटेशन। जिस पार्ट के अंदर आई है सिर्फ वो पार्ट अफेक्टेड होगा। सोमैटिक म्यूटेशन के अंदर जिस पार्ट के अंदर म्यूटेशन है वो अफेक्टेड होगा। जर्म लाइन म्यूटेशन के अंदर पूरी बॉडी अफेक्टेड होगा, क्योंकि इट इज द गमीट्स के अंदर म्यूटेशन आई थी जर्म इसके अंदर। तो ये वही चीजें मैंने आपको बता दी, ये बता दी। इसकी डायग्राम भी इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें कि ये आपको आने चाहिए। ऑन्कोजीन्स का सिग्नल ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म मैंने बताया, और सिग्नल ट्रांजैक्शन प्रोटीन सेल साइकिल के बारे में। ट्यूमर स्प्रेसर जीन, रेटिनोब्लास्टोमा, P53 ट्यूमर स्प्रेसर जीन दैट अफेक्ट द सेल एडिशन। ये वही सिग्नलिंग मैकेनिज्म, ये देखें, ये वही सिग्नलिंग मैकेनिज्म है। ये रेटिनोब्लास्टोमा का, ये P53 का, ये न्यूरोफिब्रिन का, ये कैटरिन और कैटनिन का। ये डॉक्टर नूरुल की स्लाइड्स हैं, मैंने ग्रुप में भेजी भी हुई हैं। कैटरिन और कैटनिन का, ये ट्यूमर स्प्रेसर जीन्स का टेबल। ये वही बात, कैंसर रिक्वायर्स मल्टीपल म्यूटेशन के स्टेप बाय स्टेप लॉस होती जाएगी तो कैंसर डेवलप होगा, क्योंकि रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स आप पढ़ेंगे कि डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म बड़े स्ट्रॉन्ग है। रोल ऑफ वायरसेस इन ऑन्कोजीन्स। सो हमारा लास्ट टॉपिक है, मैं उसको छोटा सा करके बताऊंगा, ट्यूमर मार्कर्स। ये वही, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये वही ऑन्कोजीन जो मैंने आपको बताया ना टेबल, वो वही है, इसके अंदर लिखे हुए हैं सारे, वो जो 3 बॉक्सेस बताए मैंने आपको। अच्छा, ट्यूमर मार्कर्स एज द नेम शोज, ऐसी चीजें जो ट्यूमर को मार कर दें उसको हम कहते हैं ट्यूमर मार्कर्स। अगर देखें बॉडी के अंदर कोई ट्यूमर डेवलप हो रहा हो और उस ट्यूमर का कोई प्रोडक्ट हो, जब वो ट्यूमर डेवलप होगा तो वो प्रोडक्ट बॉडी में बढ़ जाएगा। हम उस प्रोडक्ट को मैयर करके पता लगा सकते हैं कि वो ट्यूमर डेवलप हुआ कि नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, हमने फियोक्रोमोसाइटोमा पढ़ा था जिसके अंदर वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड यूरिन में ज्यादा हो जाता था, और तब मैंने आपको कहा था वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड ट्यूमर मार्कर है फियोक्रोमोसाइटोमा का, क्योंकि अगर ये यूरिन के अंदर आ रहा है इसका मतलब है बंदे के अंदर फियोक्रोमोसाइटोमा जो एक बेनाइन ट्यूमर है एडेनोमेडुला का, वो डेवलप हो गया। सो ट्यूमर मार्कर्स आर द chemical or the as chemical substances, the nature can be different, that marks the tumor, the presence of which detects the tumor. So tumor markers कौन से होते हैं जो आपके सिलेबस में है? सीरम प्रोटीन्स हो सकती हैं, ऑनको फीटल एंटीजेंस हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं, रिसेप्टर्स हो सकते हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं, और HCG लेवल्स। ये आपके सिलेबस के अंदर है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें कि ये टाइप्स के ट्यूमर मार्कर्स हो सकते हैं। अब इनकी टाइप्स को हम डिस्कस कर लेंगे। अब सीरम प्रोटीन्स के आपको एग्जांपल आनी चाहिए। सीरम एम प्रोटीन बॉडी में बढ़ी हुई है तो इसका मतलब है मल्टीपल माइलोमा है। फ्री लाइट चेन जिसको हम कहते हैं बेंस जॉन प्रोटीन, ये ट्यूमर मार्कर है मल्टीपल माइलोमा के। बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, ऐसी ट्यूमर मार्कर जो सीरम प्रोटीन्स हैं जो सीरम के अंदर आते हैं। हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी, ये बाकी 3 कॉलम नहीं आपने करने, ये पहले 2 करने हैं कि कौन सा ट्यूमर, एग्जांपल्स आनी चाहिए आपको किस में बढ़ते हैं। इसी तरह एंजाइम ट्यूमर मार्कर्स हो सकते हैं। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज ब्लड कैंसर्स में बढ़ते हैं। अल्कलाइन फॉस्फेट हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बोन मैरो में बढ़ते हैं।
इनोलिन स्पेसिफिक इनोलेज एंड न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स में रेज होता है, एंजाइम्स हैं ये। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन प्रोस्टेट कार्सिनोमा का ट्यूमर मार्कर है। इस तरह एंडोक्राइन ट्यूमर मार्कर होते हैं। होमोवैलेनिक एसिड मैंने आपको बताया था फियोक्रोमोसाइटोमा का, विनिलाइल मेंडाइलिक एसिड फियोक्रोमोसाइटोमा का, मेटानेफ्रिन फियोक्रोमोसाइटोमा के हैं, ये एंडोक्राइन ट्यूमर मार्कर्स। कैटेकोलामीन्स हैं। कार्सिनोइड्स ट्यूमर में हमने जब प्रोटीन्स पढ़ी थी हमने पढ़ा था 5 हाइड्रोक्सिंडोल एसिटिक एसिड है। कैल्सिटोनिन जो होता है हमारे पास ट्यूमर मार्कर होता है मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा का, एमटीसी एंड न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स का। सेरोटोनिन कार्सिनोइड ट्यूमर का ट्यूमर मार्कर होता है। इसी तरह कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो वहाँ पर ट्यूमर मार्कर होते हैं। CA19 होता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर एंड एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कोलॉन का। CA15 होता है मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर का। अगर ये हमें इंक्रीज मिल रहे हैं तो इसका मतलब है ब्रेस्ट कैंसर है। CA27-29 होता है मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कार्सिनोमा का। CA125 एमसीक्यूज में आता है ओवेरियन कैंसर का ट्यूमर मार्कर होता है। इट इज अ कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। रिसेप्टर ट्यूमर मार्कर्स हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HER2 न्यू। ये ब्रेस्ट कैंसर में आप लोग किसी के अल्लाह ना करे किसी को आप लोग ब्रेस्ट कैंसर की अगर रिपोर्ट देखें तो उसके अंदर लिखा होता है दीज रिसेप्टर पॉजिटिविटी। फिर हमारे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें। अल्फा फीटोप्रोटीन्स जो है ना ये ट्यूमर मार्कर है। ये आप पुराने पेपर देखें आया हुआ है पेपर के अंदर कि गिव द ट्यूमर्स इन विच द फॉलोइंग प्रोटीन्स आर रेज्ड। उसमें एक अल्फा फीटोप्रोटीन है। अल्फा फीटोप्रोटीन जो होती है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, योक सैक ट्यूमर, एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर, इनमें रेज्ड होती है। HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन ट्यूमर मार्कर है कोरियो कार्सिनोमा। या फिर हमारे पास जो है इन्वेसिव मोलर डिजीज, इन्वेसिव जो मोलर डिजीज मोलर प्रेगनेंसी होती है इन्वेजन कर जाए उसमें भी बढ़ सकता है। या फिर ये कुछ टेस्टिकुलर ट्यूमर्स में भी बढ़ जाते हैं। एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा में अल्फा फीटोप्रोटीन भी बढ़ती है, HCG भी बढ़ती है। टेराटोमा ट्यूमर होता है जो 2 से या 2 से ज्यादा जो होती हैं जर्म लेयर्स को कंप्राइज कर होता है। एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्सोडर्म, इनमें दोनों नहीं बढ़ता। अच्छा ये वाली भी स्क्रीनशॉट ले लें। अल्फा फीटोप्रोटीन जर्म सेल ट्यूमर में हेपेटोमा या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में बढ़ती है, कोरियो कार्सिनोमा में बढ़ता है, ओवेरियन में ये बढ़ता है, प्रोस्टेट में ये बढ़ता है। ये आप लोगों को मैं अभी भेजता हूँ क्वेश्चन पुराने पेपर के कौन कौन से हैं कैंसर से। सो ये वाला जो आप ये हर हाल में आने चाहिए, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। अल्फा फीटोप्रोटीन, कोरोनिक एम्ब्रियोनिक एंटीजन, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन। अच्छा CEA जो होता है पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा में बढ़ता है जो बीच वाला है। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में बढ़ता है। ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन कोरियो कार्सिनोमा में बढ़ता है। अल्फा फीटोप्रोटीन योक सैक ट्यूमर में बढ़ता है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में बढ़ता है, एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर में बढ़ता है। So this was our today's lecture related to the cancer. If you have any question, you can ask now and after that on WhatsApp. So Jazakallahu khairan wa ahsanal jazai fid darain. If you have any question, you can ask now.